कल के लेक्चर का आपको रिकैप दे रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, देन वी गोना गो अहेड। Though we have studied this topic yesterday, so it was like P has to be constant. जो momentum है that has to be constant. P is constant or conserved. P is called as linear momentum. P को हम क्या बोलते हैं बेटा? Linear momentum बोलते हैं. That has to be conserved. Linear momentum has to be conserved. So that will be it. Linear momentum has to be so P will be a linear momentum, and after that P is equal to mv. P कितना होगा अपने पास? mv, which is constant. Which is constant, right? So according to that, P initial is equal to P final. जब constant रहता है means initial और final दोनों के दोनों क्या रहेंगे? Constant. So initial was something like what we have studied about two balls, right? Two balls, they collide with each other, they get separated again, and then after separation, after collision, their final velocities are different, right? So एक का speed v1 होगा, दूसरे का v2 होगा, इस तरीके से अपने पास वो चलता है. So P initial is equal to that will be equal to m1 u1 plus m2 u2. This is initial linear momentum for both the balls. उनकी initial velocities कितना u1 और u2 है, they just get collide. So m1 u1 plus m2 u2. This is initial linear momentum that has to be equal to final. Masses does not change, so their velocity will change. Their velocities will change. इसमें थोड़ा और भी पढ़ना होता है, coefficient of restitution भी आता है, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, उसको यहाँ नहीं पढ़ रहे अपन. So m1 u1 plus m2 u2, that has to be equal to m1 v1 plus m2 v2. All right. So I hope you have understood that. So this is one thing. So this is conservation of linear momentum. राइट. अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सबसे पहले अपने इस पे बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो एक तो रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ना है अपन को, और उसके अलावा अपने पास रिकॉलिंग स्पीड ऑफ द गन. सबसे पहले हम रिकॉलिंग स्पीड ऑफ गन पढ़ते हैं, देन वी गोइंग टू स्टार्ट विद द रॉकेट प्रोपल्शन. Application of conservation of linear momentum first is that is recalling speed of gun. Recalling speed of gun क्या होगा? अब आपने गोली तो किसी ने नहीं चलाई हुई है अभी तक, और किसी ने maybe someone of you having this aspiration to become a shooter, right? And going to Olympics for India, that would be great. So you need to understand it that way also. But this is a basic concept which everyone of us should know. आपने देखा होगा, सुना होगा किसी भी एल्डरली से कि अपन जब गन चलाते हैं तो अपने कंधे पे पीछे की तरफ झटका लगता है, बिकॉज द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द गन ऑन आवर शोल्डर. आगे चलाए, गन ने अपने कंधे पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया. क्यों? क्योंकि बुलेट आगे की तरफ गई है. सो न्यूटन से थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा? एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सीधा गए, पीछे की तरफ आपको झटका लगा. दैट्स हाउ इट इज. सो दैट इज रिकॉलिंग स्पीड ऑफ द गन. हाउ डज दैट हैपन? सो दैट इज फर्स्ट केस. That is case 1. In this case, bullet is inside the gun. Mass of the bullet is small m and mass of the gun is capital M. Right? This is before firing. Before firing, velocity is 0. Velocity 0 होता है, and mass of the gun, I can write it here. Mass of gun is equal to m. Mass of bullet is small m. गन का मास ज़्यादा होता है, बुलेट का मास कम होता है.
ठीक है, और टोटल मास of the system before firing is capital M plus small m. Capital M plus small m, right? This will be the total mass before firing. Before firing, velocity is equal to, means system at rest. System कहाँ पर होगा? Rest पे होगा. So P initial has to be taken as initial momentum P initial would be equal to mv m plus small m mass into velocity, which is 0, capital M plus small m into 0. So this will be 0. P initial is equal to 0. Initial momentum will be 0. That's one case. P initial is equal to 0. Now, after this is before firing, children. After firing, what will happen? Bullet will go in the forward direction. This will go in backward direction. This is capital V and this is small v. This is capital M and this is small m. Right? ये प्रूव करेंगे अपन पीछे की तरफ. अपन तो एक्शन और रिएक्शन से अपन वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट, बट अभी इसको प्रूव करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा. ठीक है. सो आफ्टर दिस इज बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग P final is equal to mv plus small m small v. This is equation 1 and this is equation number 2, right? P final will be mass into velocity of the gun and then the bullet, right? According to conservation of linear momentum, जिसको COLM ही बोलते हैं अपन, conservation of linear momentum, according to conservation of linear momentum. So P initial is equal to P final. P initial is 0 and P final would be mv plus mv, right? This is from equation 1 and 2. So minus mv is equal to mv and v is equal to small m upon कैपिटल M इंटू स्मॉल v, और नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दिया मैंने इसका. ये नेगेटिव साइन आ गया. वेक्टर फॉर्म में भी लिखूंगा इसको मैं, तो किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा? v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v वेक्टर फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज रिकॉलिंग स्पीड ऑफ गन. और जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन वो किसको शो कर रहा है? नेगेटिव साइन shows opposite direction of motion. Opposite direction of motion of bullet and the gun. दोनों क्या हैं बेटा? far. एक आगे जा रहा है तो एक कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट. दैट इज हाउ वी स्टडी दैट, राइट? एक आगे जा रहा है, बुलेट आगे गया तो उसने रिएक्शन पीछे की तरफ लगाया. दैट इज व्हाई दैट गन गोज बैक टू हिज शोल्डर, राइट? सो कभी भी देखा होगा आपने, बहुत सारी वेब सीरीज देखी होंगी आपने, आई एम श्योर. तो यूं करके चला रहे होते हैं करके, तो हाथ पे झटका लगता है उसमें. और जितना ज्यादा मशीन गन या कुछ होगा उतना ही ज्यादा आपको झटका लगेगा. दैट्स हाउ इट इज. सो v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, mass of bullet, mass of gun into v, right? This is one, and this was first application. This was there in 9th standard also, and I'm sure you must have studied that, क्योंकि conservation of linear momentum में यही question बनते हैं वहाँ पर. So you must have studied that. Now after this, this is number 1, and second number is rocket propulsion.
rocket propulsion, right? Very important, very interesting topic to understand and to teach also. I'll take the privilege to tell you that also, because this is anyways, this is interesting. So in rocket propulsion, what happens exactly, that there is a rocket, this is it, initial जो velocity होगा उस पे at t, initial velocity v naught ऊपर की तरफ at t is equal to 0, at t is equal to 0 initial velocity. Second case, at time t, at time t velocity कितना होगा इसका v, कितना velocity हुआ v, okay. Third case, velocity of the rocket has become delta v, v plus delta v. नीचे की तरफ जो गैस आ रही है, this is small v and this is capital V. Children, please keep that in mind. v plus delta v, ये नीचे की तरफ जाएगा v and ये आ गया अपने पास v naught से v dot. Okay. इसमें टाइम क्या हुआ, यहाँ आपके पास जो मास है that is m naught, मास कितना है m naught, यहाँ पे मास कितना हुआ आपके पास m, और यहाँ पे इसका मास कितना कम हुआ m माइनस डेल्टा m. क्यों? क्योंकि गैसेस निकल गई. जो गैसेस हैं, जो फ्यूल है, बेसिकली जो फ्यूल है वो बर्न होगा नीचे की तरफ जाएगा. वो एक्शन का क्या होता है बेटा, रिएक्शन होगा. सो दैट विल बी m माइनस डेल्टा m. कितना होगा बेटा, m माइनस डेल्टा m. दिस इज द m माइनस डेल्टा m, दिस इज द मास एंड डेल्टा m गैसेस वो कहाँ गई, नीचे की तरफ इजेक्ट हुई है v वेलोसिटी से. और टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम t प्लस डेल्टा t, टाइम इंस्टेंट, कोई भी टाइम इंस्टेंट जहां पे t के बाद डेल्टा t टाइम पे उसमें वेलोसिटी हल्की बढ़ी, मास हल्का कम हो गया एंड योर वेलोसिटी, दीज आर स्पीड ऑफ इजेक्टेड गैसेस, है ना. आपको देखा होगा जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ गैसेस इजेक्ट होती हैं जो कि उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं. जैसे थ्रस्ट मिलेगा रॉकेट विल गो अप एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट. So v naught, m naught, v m and at time t, and that's how it is. That's how basically the scenario it is, right? So initially अपने पास हम इन दोनों को, मैं सिचुएशन ये इसको मैंने लिया सिचुएशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. इट्स अप टू मी मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस तरीके से ले रहा हूँ क्वेश्चन में, दैट्स अप टू मी, राइट, है ना, मेरी दादागिरी है. ओके, सो सेकंड एंड थर्ड केसेस को कंसिडरिंग from case second and third, according to conservation of linear momentum, what will be changed? So conservation of linear momentum, P initial has to be equal to P final. P initial और P final क्या होगा, सेम. इसको इनिशियल मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, फाइनल मानेंगे. दो चीजों में ले रहे हैं क्योंकि ये अपने पास एक एक्सप्रेशन लेके आएगा. क्यों ले रहे हैं इससे, क्योंकि m तो अपने पास था, ये इनिशियल हो गया t इक्वल टू 0 पर. ये कहां पे लिया आपने, t इक्वल टू 0 पर. यहाँ पे t इक्वल टू क्या ले रहे हैं अपन, टाइम कितना ले रहे हैं, एट टाइम t इक्वल टू t सिंपली. और वहां पे मास m था, वेलोसिटी v है, पर उसके डेल्टा t टाइम होने के बाद डेल्टा, तो टाइम हैज इंक्रीज, वेलोसिटी इसका इंक्रीज होगा और m माइनस डेल्टा m, मास कम होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा. क्यों, क्योंकि मोमेंटम हैज टू बी कांस्टेंट. यदि मास कम कर रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ाओ, प्रोडक्ट तो देखो बराबर आना चाहिए, हैं, p is equal to mv, that has to be equal to each other. So there should not be any गड़बड़ into that. All right, so p initial इस पॉइंट पे उसका मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, that p initial, p final. Don't forget to take द मोमेंटम ऑफ इजेक्टेड गैसेस. आप यहाँ पे खो मत जाना बेटा कि मास इतना हुआ v प्लस डेल्टा v हो गया, बट इसका लेना मत भूलना कभी भी,
ठीक है। सो यहाँ वेलोसिटी अपने पास कैपिटल वी है, ध्यान रखना, दिस इज कैपिटल वी बच्चे, ये कैपिटल वी है, ठीक है, दिस इज वी प्लस डेल्टा वी। सो एम वी इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ रॉकेट एंड प्लस मोमेंटम ऑफ इजेक्टेड गैस ऑल्सो। सो मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज एम माइनस डेल्टा एम इंटू वी माइनस डेल्टा वी। ये अपने पास किसका आ गया, दैट इज मोमेंटम रिलेटेड टू मास। बट अपने पास जो गैसेस हुई है, इजेक्ट गैसेस अपने पास हुई है, तो उनका किस तरीके से लेंगे, दैट विल बी एम वी, ओके, दिस इज एम कैपिटल, दिस इज कैपिटल वी, सॉरी, राइट, ऑल आर कैपिटल वी, दिस इज ऑल्सो स्मॉल वी में मैं इस तरीके से डिनोट करूंगा स्मॉल वी को, है ना, ऊपर वो बना दूंगा, सो तो थोड़ा सा इजी रह जाएगा अपने लिए। सो प्लस मास ऑफ इजेक्टेड गैस, मास कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि मास कितना कम हुआ, डेल्टा एम, ये डेल्टा एम किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, जो मास था वो किस में, गैसेस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस बाहर की तरफ निकल गई, मींस वो कम हो गया है मास। सो मास ऑफ द गैसेस, इजेक्टेड गैसेस विल बी, जितना इसमें से कम हुआ वो कितना है, डेल्टा एम, कितना, यहां तो एम था, डेल्टा एम आपने जला दिया तो यहां तो मास कितना होगा, एम माइनस डेल्टा एम, और डेल्टा एम क्या होगा, गैसेस का, तो गैसेस का मास कितना है, डेल्टा एम, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, दैट विल बी कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं अपन यहां पर, क्या लेते हैं, relative velocity with respect to gases, right? So gases, relative velocity with respect to gases. So this will be the case, and now if we solve it further, हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। सो अपना फॉर्मूला क्या आएगा, एम वी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम डेल्टा वी माइनस वी डेल्टा एम प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस डेल्टा एम डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम वी माइनस डेल्टा एम इंटू वी। दिस विल बी द केस। एम वी से एम वी कट गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया, जीरो, क्या होगा बेटा, जीरो होगा। सो हेयर द नेक्स्ट स्टेप, जीरो इज इक्वल टू, यहां से अपने पास ये वाला वैल्यू भी क्या है अपने पास, कम है, 2 4, ओके, एम डेल्टा वी डेल्टा एम इंटू वी, ये भी कैंसिल आउट हो गया अपने पास, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, कैपिटल वी इंटू डेल्टा एम, कैपिटल वी इंटू डेल्टा एम, डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, प्रोडक्ट ऑफ, ये क्यों, क्योंकि मास भी बहुत कम है और वेलोसिटी में चेंज भी बहुत कम हुआ है, तो दोनों बहुत स्मॉल वैल्यू हैं, स्मॉल वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, और स्मॉल वैल्यू आएगी अपने पास, सो दैट विल बी डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी कैन बी नेग्लेक्टेड। सो जीरो इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम इंटू वी, दिस विल बी द केस, दिस विल बी द केस। हम उसको कैपिटल एम भी ले सकते थे बट विल डू इट लेटर। सो ये अपने पास आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, इससे अपने पास जीरो इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा वी, ओके, नेक्स्ट स्टेप प्लस डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, सिंस so their product delta m into delta v can be neglected, उसको क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड। सो दिस इज डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट विल हैपन हियर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया मैं डेल्टा वी को, इसको लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम इंटू स्मॉल वी, डेल्टा एम is equal to small v, right? So delta v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, so delta v is equal to माइनस डेल्टा m अपॉन m इंटू छोटा वाला v,
कौन सा है बेटा? छोटा वाला v. छोटा वाला v क्या है? जो गैस इजेक्ट हो रही हैं वो कांस्टेंट रेट पे जा रही हैं. गैस जो भी इजेक्ट होंगी वो क्या होंगी? कांस्टेंट रेट से बाहर निकल रही हैं. ठीक है बेटा. सो डेल्टा v अपॉन डेल्टा, ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया. दिस इज चेंज इन velocity. This is change in velocity. I hope you have understood till this point because आगे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसमें. सो t इक्वल टू 0 से अपने पास इनिशियली क्या था? अपने इनिशियल वेलोसिटी से लेके अपन फाइनल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में लेंगे. सो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v नॉट. और फाइनल इस पॉइंट को मार रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड केस फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड at t is equal to 0, at t is equal to 0, velocity is equal to v naught, velocity is equal to e naught, and mass is equal to m. This is first case. At time is equal to t, velocity हो गया अपने पास v. velocity कितना हुआ है बेटा? v naught से चल के v तक हो गया, and mass has become m. Mass is equal to, this was m naught and this has become m. So now we have got a limits. So therefore, if we, by putting limits into equation number 1, this is equation number, by putting limits in equation 1. equation 1 में limit put करेंगे, so it would be delta v, v naught से v तक माइनस डेल्टा m अपॉन m इंटू स्मॉल v. या इसमें लिमिट, मास की लिमिट क्या है? m नोट टू m, राइट. सो मेजर पार्ट जो समझने का था वो कैंसिल हो गया है. नाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन पार्ट ओनली. और कैलकुलेशन तो वैसे भी अच्छा ही होता है होता है, बड़ा अच्छी बात है. सो डेल्टा v कैन बी एक्सप्रेस एज dv, v नोट टू v माइनस v को बाहर ले लिया. दिस कैन बी dm अपॉन m, m नोट टू m. दिस इज 1 अपॉन x इंटू dx, 1 अपॉन x इंटू, दैट विल बी log x. सो dv विल बी v, dv विल बी v v नोट टू v. कहाँ से कहाँ तक आएगा? v नोट से v तक आएगा माइनस v, और dm का कितना हो जाएगा? नेचुरल लॉग e m एंड m नोट टू m. dv का v हो गया है ना, डायरेक्ट है. dx का जैसे x होता है, dv का v हो गया. और log 1 अपॉन m का कितना होगा? log m हो गया. ठीक है. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस v log e अपर लिमिट माइनस log e लोअर लिमिट, राइट. इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके गया तो क्या होगा बेटा? v ऑन द लेफ्ट हैंड साइड v माइनस v नोट, v log m नोट माइनस log m नोट माइनस log m, log e m नोट माइनस log m. नाउ v माइनस v नोट is equal to v log e m upon n. This is the formula. Log m minus log n becomes log m naught upon m, right? This will be the case. V minus v naught, v log e up m naught upon m. This will be the case. Now v naught can be taken on the right hand side. So v is the velocity of the rocket. Velocity of the rocket at time t can be figured out from this point. V is equal to v naught. V is equal to v naught plus v log, natural log m naught upon m. This is velocity of rocket at any instant t. किसी इंस्टेंट t पे उसका वेलोसिटी ये आएगा. हम मान लें t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 है. लेट t इक्वल टू 0, velocity v naught is equal to 0. So v will be 0 plus
So V will be V E m naught upon m, and V is equal to velocity of ejected gases. Velocity of ejected gases. I hope this is clear. Now the next point which come, thrust on the rocket, है ना? Thrust क्या होता है? Thrust देखते हैं. Next point. Thrust on the rocket. Thrust on rocket. वो कितना होगा बेटा? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, मास इन चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल दोनों क्या होंगे? सेम. अच्छा, रॉकेट का पॉजिटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा और गैसेस का नेगेटिव डायरेक्शन के साथ लेना पड़ेगा. सो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डी एम, राइट. सो दोनों तरफ अपन टी से डिवाइड कराएंगे, डी वी अपॉन डी टी माइनस वी डी एम बाई डी टी. सो एम डी वी बाई डी टी किसके इक्वल आएगा बेटा? डी वी बाई डी टी किसके? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है. तो दिस इज फोर्स, फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, माइनस वी F is equal to minus V dm upon dt. This will be equivalent to force and that is called as thrust. That is called as thrust. क्या बोलेंगे इसको? Thrust बोलेंगे. तो ये पूरा डेरिवेशन किसके लिए हुआ बेटा? रॉकेट प्रोपल्शन के लिए. रॉकेट ऊपर जाएगा, थ्रस्ट का वैल्यू इतना आएगा और वेलोसिटी इतना आएगा. आपसे फोर्स और वेलोसिटी के अलावा कुछ नहीं पूछेगा. ठीक है, अंडरस्टूड दैट. सो फोर्स भी आ गया और वेलोसिटी आ गई. दिस इज कैपिटल वी. कैपिटल वी इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एन इंस्टेंट ऑफ एन इंस्टेंट टी. मास कितना बच रहा है, कितना इनिशियल मास था, वो सब उसको देना पड़ेगा क्वेश्चन में. सो उस तरीके से अपन ले सकते हैं. और आपको दे रखा हो और मास पूछा हो किसी इंस्टेंट में तो अपन उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं. सो ये आपके पास कंपटीशन में तो इसका क्वेश्चन जरूर आता ही है. और मे बी स्कूल में मैंने बताया कि मेरा जैसा कोई टीचर होगा देन डेफिनेटली ही वुड आस्क और शी वुड आस्क दिस क्वेश्चन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट.